like in the story mode, because if you want to understand the basic structure thing, then we have to go through a storyline. Like it has interesting case, and it is a doctrine which describes the hustle between the Supreme Court and the Parliament. So, do anybody have any idea regarding this thing, doctrine? Hello, am I audible? Like, do anybody have any idea regarding this doctrine? What is basic structure doctrine? Anything? Anyone? Yes, sir. Good morning, sir. Yeah, Sir, am I audible? yeah. You're audible. Yeah, sir. Just wanted to say the doctrine of basic structure helps to protect and preserve the spirit of the Indian Constitution. Yeah, absolutely right. Anything else? Anyone? So, Yes, Shivani. good morning, sir. It is said that it's a block on which whole building is laid down, like on the basic structure doctrine, whole constitution is based on. Hmm. Khushi, you were telling something. Yes, I am telling the same that whole basic structure is based on that building block, that is doctrine of basic structure. Okay. So, एज ए लेमैन टर्म्स, ठीक है, अगर मैं हम लोग ये बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, ये तो बहुत ऑर्नामेंटल टर्म्स में हो गया डेफिनेशन, ओके, बट एज ए बेसिक क्या चीज हो, एनीथिंग का बेसिक क्या है, इट्स रूट्स, राइट, द रूट। तो जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हम लोग को वी लुक इनटू द थिंग व्हाट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। when the constitution was made, the makers of constitution, when they introduced laws, articles, schedules into the constitution, what was their true spirit, and what is to be changed and what is not to be changed, because in society we don't forget our roots, right? We evolve according to our culture, our roots, but the basic thing, the basic जो ढांचा होता है, that doesn't change, right? Are you clear, guys? Yes, sir. So before starting to like basic structure thing, हम लोग दो आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है आर्टिकल 13, ओके, देन आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 13 का लैंग्वेज ये है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट, मतलब कि जो भी लॉज बन रहा है या जो लॉज एग्जिस्टिंग है, अगर वो डेरोगेटिव है या इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, उस लॉ को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? आर्टिकल 13 का ये मतलब है, इट मींस दैट। देन आर्टिकल 368 गिव्स पार्लियामेंट टू अमेंड, okay, to amend in the constitution. So these two articles were the main conflict, okay, because uh, article 13 says that laws which are inconsistent to the fundamental rights, that can't be considered as law, that is unconstitutional. And article 368 gives power to the parliament to amend laws. So there was a dispute that if the laws are amended, new laws are coming into the scenario, then what is the like measurement, like how, if the amended laws are coming, are they inconsistent, or it will be considered inconsistent, or it will fall up in the ingredient of article 13 or not. So that was the main dispute, okay. So there was a tussle between Supreme Court and the Parliament, because Parliament makes laws. Okay, Supreme Court has a, like in today's scenario, Supreme Court has a judicial review power to maintain a check and balance, that is the law is inconsistent or not, or it is not in favor of the government or in the favor of the parliament only. Okay, so ये जो स्टोरी लाइन में बताने वाला हूँ, उसमें कभी कभी पार्लियामेंट का अपहरण रह रहा है, कभी कभी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का अपहरण ले रहा है। शिवानी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ बिकॉज सम नॉइज इज कमिंग? Okay, thank you.
ओके, सो दिस इज द सिनेरियो. तो स्टार्ट होता है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 31 ए इंट्रोड्यूस किया गया था. यू कैन, इफ यू गाइस कैन नोट इट, यू कैन नोट इट. I has little, I was in little hurry, so I was not able to make the PPT. Sorry for that. But if you can note it, you can note, and I can go slowly if you want. Okay. So first amendment हुआ था, आर्टिकल 31 ए आया था. फर्स्ट आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में. तो आर्टिकल 31 ए में द अमेंडमेंट वाज सेइंग दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर कि कोई भी स्टेट या कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंडर वो अपना लॉस खुद बना सकता है और उन लोग का राइट्स भी खुद मॉडिफाई कर सकता है. ठीक है. तो द पार्लियामेंट वाज लाइक acting little bit in like not in the favor of like not what we say in democracy का जो spirit है उसको फॉलो नहीं करके थोड़ा arbitrariness हो रहा था उस टाइम जो अमेंडमेंट आया था. तो उसको देखा था कि शंकरी प्रसाद का एक केस था. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग मच इनटू द फैक्ट बिकॉज आई एम स्टिकिंग टू द डॉक्ट्रिन थिंग ओनली. तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, या 31 ए एंड 31 बी दोनों अमेंड हुआ था. 31 बी में बोला गया था कि मॉडिफाई होगा राइट्स. ठीक है. उनके पास राइट्स है मॉडिफाई करने का, पार्लियामेंट पास अधिकार है. ठीक है. देन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो था उसमें 1951 का ही जजमेंट है. उसमें ये हेल्ड किया गया था कि 31 जो है वो जो आर्टिकल 13 है जो इनकंसिस्टेंसी की रिगार्डिंग बात कर रहा है एग्जिस्टेंस लॉ का, वो खाली स्टिक करता है एग्जिस्टिंग लॉज पे. अमेंडेड लॉज नहीं आता है उसके क्राइटेरिया में. सो नो अमेंडमेंट लॉज फॉल अंडर द क्राइटेरिया ऑफ आर्टिकल 13. तो अगर अमेंडेड लॉ फंडामेंटल राइट्स इनकंसिस्टेंसी भी है तो दैट डजंट मैटर, ओनली द एग्जिस्टिंग लॉ थिंग इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. ओके. तो शंकरी प्रसाद में दिस वाज इन द फेवर ऑफ द पार्लियामेंट. ओके. देन अगेन 17th अमेंडमेंट हुआ 1964 में, जिसमें मोर प्रोविजंस वगैरह ऐड किए आर्टिकल 31 ए में, जो थोड़ा और पार्लियामेंट को पावर दे रहा था टू मेक लॉज अकॉर्डिंग टू देम अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग एंड ऑल. तो हुआ क्या कि फिर जो 17 अमेंडमेंट के बाद दूसरा एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि था 1964 में. ये 5 पेजेस जज का 5 पेजेस जज थे इसमें. तो रेशियो आया था 3:2 में. और इन्होंने सेम डिसीजन जो आपके शंकरी प्रसाद और यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया था कि जो इफ द लॉज विच आर द अमेंडमेंट लॉज जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो सब इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको माना नहीं जाएगा कि वो कोई भी ब्रीच कर रहा फंडामेंटल राइट को. वो यस 1964 65 समथिंग बिटवीन दैट. थैंक यू फॉर करेक्टिंग. सो सिनेरियो यही चल रहा था कि शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह दोनों में ही बोला ये गया था कि जो आर्टिकल 13 में जो लॉज है वो खाली एग्जिस्टिंग लॉज के रिगार्डिंग बात कर रहा है. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द अपडेटेड लाइक द अमेंडमेंट लॉज एंड ऑल. देन एक जजमेंट ऐसा आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और स्टेट ऑफ पंजाब, सॉरी. तो उसमें इट वाज द 11 जज बेंच, लाइक केशवानंद भारती केस जो है हम लोग का जो हम लोग आएंगे वो 13 जज बेंच जो अभी तक का सबसे बड़ा बेंच है. उससे पहले जो था सेकंड वो है गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें 11 जज का बेंच था और रेशियो था 6:5 का. तो ओवर ये क्या किया ना, ओवर रूल्ड कर दिया. ठीक है. तुम्हारा सज्जन सिंह और शंकर प्रसाद का जजमेंट को ओवररूल कर दिया. और उन्होंने ये बोला कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है नहीं कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर, फंडामेंटल राइट को ब्रीच करके कोई भी लॉ ला सके और कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सके. और जुडिशियल रिव्यू के लिए भी हक है सुप्रीम कोर्ट्स को कि जो पार्लियामेंट लॉज बना रहा है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो पाए. ठीक है. अभी तक सबको क्लियर है? यस सर. ठीक है. तो पार्लियामेंट का यही यही सीन था कि मतलब अभी 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 ओपन हैंड किसका आया, पार्लियामेंट या कोर्ट का, गोलकनाथ के जजमेंट के बाद से? हेलो.
या शिवानी जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी का एक अपोनेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आया 24th एंड 25th अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट रहा, आई गेस 1971 में था 24th अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसमें इन्होंने, हम लोग ने पहला क्या आर्टिकल डिस्कस किया था, आर्टिकल 13, आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 क्या बात कर रहा था कि जो लॉज इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, और वो 368 अमेंडिंग पावर दे रहा है पार्लियामेंट को, ठीक है। तो 24th अमेंडमेंट 1971 में जो आया था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड हुआ था, ठीक है। तो इसमें ये बोल दिया क्या कि नथिंग इन द आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो उन्होंने, जो पार्लियामेंट ने अपना ही साइट क्लियर करते हुए ये स्टेट कर दिया कि कोई भी अमेंडमेंट लॉ अगर 13 प्लस 368 के द्वारा आ रहा है तो वो इस 13 में फॉलो अप नहीं करेगा। एंड 368 आर्टिकल में क्लॉज 3 ऐड कर दिया गया, बोला गया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to any amendment under a article, मतलब वाइस वर्सा हो गया। अभी जो 13 और 368 को जो अमेंड किया गया उसको वो लोग अपने पक्ष में ही रख लिए, ठीक है, जिससे जुडिशियरी का एक थोड़ा सा जो अपहंड था तो जुडिशियल रिव्यू वगैरह का, वो थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। बिकॉज पूरा जो डॉक्ट्रिन निकला है ना, वो पूरा हसल से ही निकला है बिटवीन जुडिशियरी एंड दी पार्लियामेंट, ठीक है। फिर 25th अमेंडमेंट हुआ 1972 में, आई गेस 1972 में हुआ 25th अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 31C ऐड हुआ, ठीक है। तो 31C में ये ऐड हुआ कि कोई भी लॉ अगर डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने के लिए आ रहा है और वो अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा अगर वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, ठीक है। डू यू नो गाइस अबाउट डीपीएसपी? Yes, sir. क्या है डीपीएसपी? शुभाग्या। So it's directive principles of state policy. Shall I define it? हाँ, मतलब एक तो फुल फॉर्म बताई तुमने। So basically, these are certain guidelines, basically which have application on the state. These guidelines have to be followed by the state in order to ensure the welfare of the entire nation. या करेक्ट, ओके। तो उन्होंने ये लॉ फिर पास कर लिया कि सॉरी, बट ये एनफोर्स नहीं होगा। हाँ, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि डीपीएसपी में उनको क्या एनफोर्स करना है क्या नहीं करना है, ऐसा बाउंड नहीं है वो लोग, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि 24 एंड 25 जो अमेंडमेंट आया वो बहुत आर्बिट्ररी हो गया, और उसमें ये भी आ गया था कि 24 25 का मेन जो समरी था कि कोर्ट पे कोई प्रोसीडिंग्स नहीं जा सकता, कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता पार्लियामेंट के किसी अमेंडमेंट को, ठीक है। एंड बेसिकली सब जो राइट्स है कोर्ट से छीन लिया जा रहा था, ठीक है। फिर तुम्हारा आया 29th अमेंडमेंट आया था, उसपे भी तुम्हारा बहुत सारा चीज बदला गया था। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द फैक्ट्स एंड ऑल, बट चेंजेस आए थे उसमें। फिर तुम्हारा आता है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ जो के स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। उसमें जो वेलफेयर, हाँ हाँ ठीक है, अभी हम लोग डीपीएस में से आ गए हैं, ठीक है। तो जो स्टेट ऑफ केशवानंद भारती केस था, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट अभी के टाइम का, क्योंकि इसी से ही बेसिक डॉक्ट्रिन थ्योरी आया है। किसी को अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो दे सकता, अपने से इनपुट दे सकता। तो उनको क्या पता है इस केस के रिगार्डिंग? Good morning, sir. या शिवानी। सर अकॉर्डिंग टू द केशवानंदा भारती केस, सर अमेंडिंग पावर जो थी वो अनलिमिटेड डिक्लेयर हो गई थी आर्टिकल नंबर 368 में। एंड यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स आए थे, सेपरेट जजमेंट्स आए थे, उसमें जो जस्टिस एएन राय जे थे, उनका कहना था कि जो पावर है वो वाइड और अनलिमिटेड है, तो मीन्स दैट कि दे हैड द पावर टू ऐड, ऑल्टर और रिपील एनी प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट
organic mechanism है that provide the constitution, organization and a systematic performance for the state. एंड एक और जस्टिस आए थे बेग, उनका स्टेटमेंट था कि जो वर्ड अमेंडमेंट है उसमें कोई पार को कंप्लीटली एब्रोगेटिंग करने का पार नहीं प्रोवाइड करते हैं. तो इन द कंक्लूजन वी कैन से कि यहाँ पर जो अमेंडमेंट की पार थी सर उसको एक्सटेंड किया गया था, बट जो 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की पार है सर उसको इंक्लूड नहीं किया गया था. तो मेन क्या डिसाइड किया गया था केशवानंद भारती में? मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बना था उस पे क्या हाँ सर, डिस्कस किया गया था? तो उसके लिए अगर सर कंक्लूजन में देखें तो जस्टिस सीकरी सर जो थे उनके अकॉर्डिंग था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें सर 5 फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे सर. फेडरल कैरेक्टर इंक्लूड होगा, सेपरेशन ऑफ पावर इंक्लूड होगा, सेकुलर कैरेक्टर इंक्लूड होगा, रिपब्लिकेशन इंक्लूड होगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म इंक्लूड होगा और एट लास्ट है सर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड होगा. राइट. एंड और भी एक बहुत मेजर जजमेंट और भी कुछ मेजर चीज ऐड हुआ था रिगार्डिंग द प्रीएम्बल, रिमेम्बर? सर रिगार्डिंग द प्रीएम्बल आई एम फॉरगेटिंग, बट यही 5 एक पॉइंट्स हम लोग केस शेयर आई करते हैं. डोंट नो तुम लोग को पता होगा नहीं, इन रे हाँ. बेरुबेरी केस होगा, ठीक है? हाँ इंडिविजुअल केस. इन हाँ रे बेरुबेरी केस उसमें ये डिसाइड किया था कि प्रीएम्बल को अमेंड नहीं कर सकते कोई, ठीक है? यस फिर केशवानंद भारती में ये भी आया था कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट विथ एक्सेप्शन की जो प्रोवाइडेड ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि यस जो सर. यस पैटर्निटी है, रूल ऑफ लॉ, प्रीएम्बल में हम लोग का जो वर्डिंग्स है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, पैटर्निटी, जो भी चीज मेंशन्ड है, दिस इज बिकॉज प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लूप्रिंट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना? तो उससे ही हम लोग को पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का बनने का क्या मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, राइट? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसीलिए मेन जो आपने जो बोला जस्टिस सिकरी, राइट शिवानी? यस सर. हाँ, यस सर. जस्टिस सिकरी, तो जो रेशियो आया था, यस सर. सॉरी 7:6 का रेशियो था, तो जी सर. उनके उनके हिसाब से यही था कि जो अमेंड अगर आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट अगर अमेंड कर रही है तो इट इज वैलिड, कोई यस दिक्कत सर. नहीं अमेंडमेंट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सेप्ट की जो मेन ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मेन मोटिव से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यू कांट अफेक्ट दैट थिंग, यस लाइक सर. यू आर रेडी फॉर, वी आर गिविंग यू पावर टू अमेंड, लाइक उन्होंने क्या किया, जो इतने सालों से जो चल रहा था ना, गवर्नमेंट पार्लियामेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट जुडिशरी, दे टुक अ मिडिल वे. यस सर. यस सर. If you want to amend, you amend the constitution. No worry. You can amend the fundamental acts also, because the government was only focusing on fundamental rights because वो main चीज है. Part 3 of the constitution, heart of the constitution, right? क्योंकि उसी Yes. से वो लोग infringe करते हैं, अपना motive निकालते हैं. So they also allowed, you can think like you can change and all, but the thing is कि you can't change the main spirit. You can't change the route where the laws or like उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, जजमेंट, अगर तुम लोग पूरा जजमेंट पढ़ोगे, उन्होंने बोला था कि जो ट्रू स्पिरिट था व्हाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ओके, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स का जो होता है ना, वो मिल पीडीएफ अगर तुम पढ़ोगे ना, उसमें हर Yes, एक आर्टिकल क्यों इंसर्ट किया गया है उसका प्रॉपर रीजनिंग दिया गया है ना? तो कोई भी अगर लॉज अमेंड हो रहा है, कुछ भी लॉज आ रहा है, देन इट शुड बी, उनका जो लॉ बना था वो किस इंटेंशन से बना था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उसको ध्यान रख के हमको उसका ट्रू स्पिरिट देखना है, yes, समझे? तो बेसिक स्ट्रक्चर ये हुआ. देन इसके जो ये जो चीज हुआ ना केशवानंद भारती वगैरह में, ठीक है, उसके बाद एक बहुत लाइक ब्लैक फेज ऑफ डेमोक्रेसी आया था, तुम लोग को अगर याद होगा, बहुत ही इंडिया के लिए बहुत ही एक ब्लैक फेस चला, डार्क फेस चला था आफ्टर दिस. या शिवांगी, आई एम नॉट, प्लीज पार्डन, क्या Sir, you are talking about emergency? या इमरजेंसी. तो Yes, sir. उसमें भी तुम्हारा आया था बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र, जो तुम्हारा राज न्याय स्टेट ऑफ यूपी था, केस था, जिसमें Yes. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया गया था कि हम लोग की जो उस वक्त की पीएम थी इंदिरा गांधी, शी वाज लाइक so he was found guilty for electronical जो माल प्रैक्टिस, इलेक्शन में कुछ माल प्रैक्टिस के लिए वो गिल्टी पाई गई थी, और उनका जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था और डिसीजन पेंडिंग sir. था तब, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, उसी पेंडिंग के दौरान 39th अमेंडमेंट ले आया था 1975 में,
ठीक है। और 39 अमेंडमेंट में जो इन्होंने ऐड किया था आर्टिकल 329A, ठीक है। आर्टिकल 329A में इन्होंने ऐसा मतलब कि लॉ में शब्दों का खेल बहुत ही बढ़िया माना जाता है, बिकॉज लॉयर्स ऑलवेज इंटरप्रेट लॉज, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो आर्टिकल 329A जब आया उसमें ये बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट को रिव्यू करने के लिए, जो कि पीएम का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, या फिर तुम्हारा स्पीकर ऑफ लोकसभा का हो, उसमें सब लोग का डाल दिया, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो इमरजेंसी लोग डिक्लेयर कर दिए थे। फिर जब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण गौ के, उसमें ये सब पॉइंट भी क्लब्ड अप हो गए इश्यूज, ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुआ था, ठीक है। हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट। तो इसमें जजमेंट यही आया था जो इंदिरा गांधी में कि 329A जो इंसर्ट हुआ था 1975 में, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसमें जो पार्लियामेंट है वो अपना आर्बिट्ररी पावर एक्सरसाइज कर रही है एंड जुडिशियल रिव्यू का चीज छीन रही है सुप्रीम कोर्ट से, बिकॉज यू नो जुडिशियरी ऑलवेज एक्ट्स लाइक अ वॉचडॉग, कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कुछ भी करे, दे गिव अ जुडिशियल रिव्यू, एंड इन डेमोक्रेसी, इन रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू इज वेरी एसेंशियल, राइट? गेटिंग? सर स्ट्रक डाउन कर दिया था ना क्लॉज 4 आर्टिकल नंबर 329A का इंदिरा गांधी वर्सेस हाँ राजनाथ हाँ 1975 में। हाँ हाँ सर पार्लियामेंट ज्यादा एक्ट कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था बेसिक स्ट्रक्चर को, दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली फिर सर इसीलिए तुम्हारा के जब हाँ बोलो। सर केशवानंदा भारती का जो केस आया था इससे पहले वाला, तो सर उसमें फिर वो 3 पोस्टुलेट्स ऐड हुई थी ना, जुडिशियल रिव्यू वाली हाँ आर्टिकल 32, हाँ रूल ऑफ लॉ भी, फिर रूल ऑफ लॉ रूल भी ऑफ यहाँ लिख सकते हैं, हाँ रूल ऑफ रूल लॉ ऑफ लॉ भी, लिख सकते हो। और सर एक डेमोक्रेसी भी, जो कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करता है। हाँ यस सर, तो गॉट इट। और फिर लेकिन अभी टसल खत्म नहीं हुआ, अभी फिर से 42nd अमेंडमेंट आया, ठीक है। यस सर। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट को बोला क्या जाता है, अलग नाम क्या है इसका पता है? सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक। या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला, क्योंकि उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे और बहुत सारे चीज रिवर्स हुए थे जो कि अमेंडमेंट के द्वारा आया था, ठीक है। तो बहुत सारे केस रिवर्स हुए थे, अमेंडमेंट रिवर्स हुए थे। तो उसमें आर्टिकल 368(4), 368(5) अमेंड हुए थे कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर भी है अमेंड करने के लिए। जुडिशियल रिव्यू का तो पावर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट में, और पार्लियामेंट में ये भी ऐड कर दिया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है अमेंड करने के लिए। फिर इस चीज को फिर बंद करने के लिए केस आया मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला ज्यादा पावर देना अमेंडमेंट का भी एक लिमिटेशन लगाना चाहिए, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। क्योंकि बिल्कुल तुम लोग देखो, अगर हम लोग एक फैमिली में रहे, ठीक है, एक फैमिली में रह रहे हैं, या स्कूल है, या तुम लोग का कॉलेज मान लो, अगर तुम्हारा कॉलेज हर 5 दिन में लॉ, तुम्हारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है चेंज करते रहे, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर? क्या वो यूनाइटेड रह पाएगी, या डिसिप्लिन मैनर में कॉलेज कंडक्ट करा पाएगा अपना कोई भी प्रोग्राम, क्लासेस वगैरह, अगर हर 5 दिन में लॉ चेंज होता रहे, ठीक है। तो अगर किसी क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन चीज यही है कि चेक्स एंड बैलेंस रखना चाहिए, इसलिए डेलीगेशन लेजिस्लेचर होता है। कोई एक इन पार्टी मतलब एक जगह से पावर सेंट्रिक नहीं होता है, पावर इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर इज ऑलवेज डेलीगेटेड, सो दैट फ्लो ऑफ पावर रहे, है ना? आर्बिट्ररी सर आई चीजेस ना। हैव, हाँ सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कोई टेस्ट है कि अमेंडमेंट सर उसी के पेरिफेरी में होगा, या मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फिर और कैसे समझेंगे, ये हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वैलिडिटी टेस्ट करेगा अमेंडमेंट की सर? ये वैलिडिटी टेस्ट करता है अमेंडमेंट्स का, जैसे तुम्हारा अभी जो एग्जांपल दिया मैंने 329A जो आया, उसमें जो कि सुप्रीम कोर्ट को ही बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है इलेक्टोरल चीजों में डिस्प्यूट में घुसने का, ठीक बिल्कुल है। सर। ठीक है, तो जब डिसाइड हुआ तो ये लोग पहली बार इसमें केशवानंद भारती का केस का रेफरेंस लिया गया था, बिकॉज ये जो राजनारायण वाला केस है ना, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ठीक है, इट इज द फर्स्ट केस जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो जजमेंट आया था केशवानंद भारती का, वो लागू हुआ था इधर, ठीक है, वो लागू हुआ था इधर, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला,
और जब उन्होंने जो जस्टिस सिकरी का वर्ड यही डाला कि हम लोग देखेंगे कि ये फेयर एंड जस्ट है। अगर आप यस सर। एक देश में एक जो उच्च न्यायालय है उधर उनको मना कर दे रहे कि आपको डिस्प्यूट में नहीं रहेंगे, जबकि उनका काम ही है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करने का, तो क्या ये यस फेयर एंड जस्टिस है? इज इट नॉट आर्बिट्ररी और एक थोड़ा बायस्डनेस हो रहा है? एक खाली एक पार्ट, एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को, लाइक ओनली पार्लियामेंट को ही मिल रहा है राइट्स करने का, ठीक है? तो दिस इज बिकॉज ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एज अ लॉ स्टूडेंट हम लोग को इतना तो पता है कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव वाज फॉर सिटीजन, फॉर अ फेयर, जस्ट एंड फेयर सोसाइटी। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो ट्रू स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो मेन स्पिरिट है, वी हैव टू लुक इनटू दैट rather than making unconstitutional laws or laws that are in favor of government, है ना? यस Because सर। it should in favor of citizens, not in favor of government, ठीक है? तो फिर जो मिनर्वा मिल्स में ना ये बोला गया था कि जो ज्यादा अमेंडिंग पावर जो मिल रहा है पार्लियामेंट को, उसमें भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री में यस आप, बिकॉज नहीं तो फिर अगर इफ यू गिव अनलिमिटेड पावर्स टू अमेंड लॉज, then parliament have the whole majority to vote and bring the new law because they have the right. So we यस should सर। have, इसलिए हम लोग इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल शुड बी नॉट सो फ्लेक्सिबल, थोड़ा रिजिड होना चाहिए, ठीक है? अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो जो वैल्यू है, जो रूट्स है, जो प्लॉट है जिसपे लॉज बन रहा है या जो लॉज बनते आ रहा है वो हिल जाएगा। ओके, देन फ्यूचर का कुछ सीन ही नहीं रहेगा इफ द बेसिक इज नॉट क्लियर ओनली। अगर हमको पता ही नहीं कि लॉ क्या बनना है, हर साल में लॉ बदलते जा रहा है। लाइक अभी देख लो, तुम लोग का अभी अमेंडमेंट्स हुआ ना, क्रिमिनल अमेंडमेंट्स वगैरह हुआ, ठीक है? तीन तीन जो आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह, एविडेंस वगैरह सब अमेंड हुआ अभी, ठीक है? चेंज होगा अभी। तो तुम लोग को क्या लगता है मेन कॉज क्या होगा अमेंडमेंट्स का? Sir, according to with the change in the time, with the development in the society, sir, तो जरूरी तो है सर, चेंजेस जरूरी हैं। और सर इसको अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि पूरा रीस्ट्रक्चर किया गया है। या एग्जैक्टली क्या बट आई थोड़ा हम लोग डॉक्ट्रिन से साइड हो रहे हैं अभी, बिकॉज इट इज आल्सो कनेक्टेड यस विद इट, सर। बिकॉज इट इज कनेक्टेड बिकॉज चेंजेस एंड ऑफ द लॉज एंड ऑल। तो ये बता, लॉ बनता कहाँ से है? Sir, by the reactions or reverse actions of the people only, from the society only, sir, फ्रॉम द from the सोसाइटी customs. ओनली, Sir, ठीक है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब तक हम लोग टेक्नोलॉजिकली प्रो नहीं थे या एक्टिव नहीं थे, तब जब तक हम लोग साइबर मतलब मतलब तुम्हारा टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप वगैरह यूज नहीं करते थे, तब तक साइबर लॉज का भी जरूरत नहीं था। बट जैसे जैसे हम लोग साइबर से वर्ल्ड में घुसने लगे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने लगे, देन ऑल्सो उससे क्राइम भी कमिट होने लगा। फिर जैसे क्राइम कमिट होने लगा वैसे साइबर लॉज भी आने लगा, है yes ना? sir, साइबर सेल्स भी आना। तो जैसे सोसाइटी बदलेगा वैसे yes लॉज भी आएंगे, ठीक है? sir. अभी बात हो रहा है कि जेंडर न्यूट्रल भी होना चाहिए, बिकॉज जो चीज जिसमें वुमेन एज ए विक्टिम हो रहा था, अभी मैन भी एज ए विक्टिम कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है? वो तो न्यू प्रेजेंस, न्यू लॉज होना चाहिए। एग्जैक्टली तो हर हर तो इसलिए क्या हो रहा है, तो इसमें जो जो भी चेंजेस हो रहा है ना, अब अगर आप अगर ये बोलना गलत नहीं होगा कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को मद्देनजर रख के चेंजेस हो रहा है। चेंजेस अगर हो रहा है वो ऐसा नहीं कि पूरा आर्बिट्ररी हो जा रहा है कि एक ही साइड के पक्ष को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उस चेंज से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? सोसाइटी इसको जस्ट मानेगी कि नहीं, जस्ट एंड फेयर होगा सबके लिए, ठीक है? रूल ऑफ लॉ में क्या बोलता है? एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, है ना? इक्वालिटी फॉर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। या तो एवरीबॉडी इज इक्वल, सो उसमें ऐसा भेदभाव नहीं होगा। ओके, तो जो भी चेंजेस हो रहा है दैट शुड बी एक तुम्हारा क्राइटेरिया होना चाहिए, किस चीज में चेंजेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इम्पैक्ट रहेगा। बिकॉज जब भी एक लॉ पास होता है, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट का हुआ, ठीक है, उसमें लोग हित में नहीं थे, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली बैक ऑफ लेना पड़ेगा। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बट द वे दे डिड द थिंग, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट थिंग, बट द थिंग इज कि डेमोक्रेसी में यही राइट है कि everything should be in the favor of citizen, because the citizen of a country only electing the representative over there who are making laws,
if they themselves is not making laws in their favor, then that is a waste of that their vote, right? एग्जैक्टली। तो फिर मिनरल मिल्स में कहा था कि अमेंड हो गया की लिमिट करने के लिए, ठीक है, मिनरल से ये हो गया। फिर तुम्हारे एक वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 1980 में, ठीक है, उसमें भी यही 89, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर 81 1980 में आई गेस। सर 81 है सर, अच्छा एक्चुअली डीडी वासु रेफर किया था सर, तो अच्छा डीडी वासु, अच्छा नहीं मैं एक्चुअली एम लक्ष्मीकांत से पढ़ता हूँ, इंडियन अच्छा पॉलिटी से। पॉलिटी का बुक है हमको लगता है। हाँ वो पॉलिटी का बुक है, बिकॉज मेरे को थोड़ा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, मतलब ये मेरा अपना तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड पॉलिटी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस, मतलब वो आपको ना एक ब्रॉड देगा माइंडसेट समझने, इंटरप्रेट करने को, बिकॉज इन माय कॉलेज डेज आई वाज ओनली रेफर टू डीडी वासु, केस लॉज, फिर जो क्लास चलता था, when I met many of my seniors who were preparing for UPSC and all, so they the person who are preparing for judiciary or UPSC, they prefer Indian polity, then from them उनसे जब मैं पढ़ने लगा इंडियन पॉलिटी वगैरह का चीज, तो आई कैन रिलेट टू द इंसिडेंट, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग क्या बोला था कि इट्स अ स्टोरी, अगर आप स्टोरी ऐसा पढ़ोगे इसको ना, बिकॉज कॉन्स्टी को बहुत लोग पता नहीं, मेरे जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे टाइम में जो दोस्त लोग थे वो बहुत डरते थे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में मार्क्स नहीं आएगा, ये नहीं होगा, मार्क्स उठेगा नहीं, वो ऐसा ऐसा होता था, लेकिन मैं इसलिए पढ़ता था, मेरे बाकी जो लोग ऑनर्स किए थे कॉन्स्टी में, वो लोग उसको स्टोरी ऐसा पढ़ते थे, जैसे मूवी चल रहा ना कि भाई ऐसा हुआ, फिर ये जजमेंट आया, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया, तो वो एक फ्लो चलता है, ठीक है, ठीक है, ये फ्लो चलता है। तो बेसिकली अभी भी अगर हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे, तो मोटा मोटी अभी ऐसा कुछ लॉज अगर आएगा भी इन फ्यूचर जो कि चेंज कर सकता है, कि मतलब जो इनकंसिस्टेंट हो सकता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो अभी भी जुडिशरी के पास ये राइट है टू फर्स्ट देखेगा कि यार ये क्राइटेरिया बैठ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी लॉ अभी तक है उससे बैठ रहा है कि नहीं। और एक जजमेंट था, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, उसमें ये बोला गया था कि प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है बेसिस स्ट्रक्चर का लागू होना किसी भी अमेंडेड लॉज में, कि पुराना लॉ जो बन चुका है, अमेंडेड हो चुका है, उस पर भी लागू होगा, या फिर जो प्रेजेंट लॉ उस पर लागू होगा। तो उस जजमेंट में ना, जो केशवानंद भारती का जजमेंट डेट है 24 अप्रैल 1973, करेक्ट नहीं था रॉन्ग, ओके, तो जजमेंट में ये आया था कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी अमेंडमेंट आएंगे, दैट विल फॉल इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जितने भी अमेंडमेंट होंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर के देखते हुए ही वो माना जाएगा कि आइदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और दे आर इनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी एक आईपीसी का एक सेक्शन था 303 करके, आई गेस तुमको पता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। Can anybody read that section 303 of IPC? Yes sir, wait a second, just 303 from the IPC, no? Yeah. Sir, punishment for the murder by the self-convict. Whoever being under the sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with the death. Okay. Shall be punished with the death. इसका मतलब क्या समझा तुमने? सर जो मतलब ऑलरेडी अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है सर, और उस ड्यूरेशन में अगर वो कोई डेथ मतलब मर्डर कॉज कर रहा है, मतलब मर्डर कर रहा है, कमिट कर रहा है, तो सर उसको डेथ का पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, यही लिखा। हाँ सर, कि बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और वो कमिट्स मर्डर, तो फिर वो पनिश्ड होगा डेथ से। ठीक है, ये हो गया आपका। तो जो शैल लिखा है उसका मतलब क्या है, उसमें सेंटेंस में क्या मीनिंग क्या दे रहा है? मतलब किया जाएगा इन फ्यूचर, उसको मतलब किया पनिशमेंट होगी, जाएगा, ट्रायल किया चलेगा। जाएगा, तो ये पूरा रिटर्न आ गया। किया जाएगा और किया भी जाएगा। शैल का मतलब हो जाएगा डेफिनेट, किया जाएगा।
ठीक है, यही सर सर मतलब इसको वो देखना। पूरा तुम्हारा प्रोसीजरल, मतलब तुम्हारा ये रिटर्न लॉ ही हो गया कि लॉ ही यही बोल रहा है। ठीक है, इसको इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक केस था पंजाब या हरियाणा का, वो याद नहीं आ रहा केस लॉ का नाम, इस सेक्शन को 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, क्योंकि जो शैल वर्ड लिखा है ना, अगर मे होता ना, अगर मे यूज होता ना, मे, तो मे का मतलब कि कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, किया जाए या नहीं किया जाए। है ना, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है। जो शैल हो गया ना, इट इज टेकिंग अवे पावर फ्रॉम द कोर्ट टू डिसाइड। अब समझे? यस सर। तो ऐसे, तो ये बहुत छोटा सा है, क्योंकि 303 आई डोंट नो, क्योंकि मैं जब पेपर वगैरह लिख रहा था तो मैं इस उनको पता भी नहीं था, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को पता चले केस के बारे में कि वो इसीलिए शैल और मे के लिए चेंज हो गया था चीजें। यस ओके, तो इसीलिए कोर्ट हमेशा देखता है ना, जैसे कि तुम लोग को आई डोंट नो, तुम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक सब्जेक्ट है, पढ़े हो कि सर नहीं पढ़े हो? ठीक है, पढ़े है ना, तो उसमें हमेशा गोल्डन लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, है ना, लिटरल सर लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो जब कोई लॉ इनकंसिस्टेंट होता है, कुछ भी होता है, तो कोर्ट हमेशा गोल्डन रूल पे जाता है, कि गोल्डन रूल क्या होता है कि भाई फैक्ट्स देखो, एग्जिस्टिंग लॉ देखो, उसको फिर कंबाइन करके जस्ट एंड फेयर जजमेंट दो, इंटरप्रेट करके, है ना। एब्सोल्युटली। तो ऑलवेज, एंड मैं भी बोलूंगा तुम लोग का एज अ लॉ स्टूडेंट, कोई भी डिबेट हो रहा है या कोई भी चीज हो रहा है, गवर्नमेंट या कोई लॉ निकल रहा है, कोई भी चीज रिगार्डिंग लॉ या कोई केस भी है, ऑलवेज अप्लाई गोल्डन रूल, because golden अच्छा। rule will give you a perspective of both the side, and being an advocate, being a lawyer, you should like know perspective of both the side. अगर मैं अपने डिफेंडेंट का पर्सपेक्टिव ढंग से नहीं सुनूंगा, ठीक है, आर्गुमेंट के वक्त, तो मैं अपना भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, उसको लाइक काट नहीं पाऊंगा उसके सेंटेंस को, अगर मैं ढंग से नहीं सुनूंगा और मेरा उसका पर्सपेक्टिव मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी जाके बोल दूंगा उधर सामने में, अगर केस हो रहा है तो फर्स्ट लाइक तुम लोग मूट कोर्ट वगैरह किए होगे, ट्रायल्स वगैरह किए होगे, यस ठीक है, तो उसमें यही चीज है कि यार फर्स्ट लिसन व्हाट द अदर पार्टी इज टेलिंग एंड ऑल, देन आप रिवर्ट बैक कीजिए, देन बोलिए। ओके, सो ये था मोटा मोटी सिनेरियो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। अगर आपको उस रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं, या फिर एकेडमिक्स वाइज कुछ भी डाउट है। आप लोग अभी कौन सी ईयर में हो सर? Sir, I am a practicing lawyer, not a student. ओके ओके, Yes. कहाँ पे मैम? Sir, in Delhi High Court. दिल्ली, दिल्ली में कहाँ? आप कब कब मतलब पास आउट कब की? Sir, I passed out in 2019, ओके, तो आप and then I तो मैम आप तो सीनियर रहेंगी हमारी। मैं अभी गुड़गांव में हूँ, मतलब आई एम दिल्ली Okay, राइट नाउ ओनली। मैं okay, गुड़गांव में मेरा जॉब है, मैं मेरा बार काउंसिल दिल्ली का ही है, एनरोल में दिल्ली का ही है। okay, sir. और सर शिवानी आई आप? एम इन अकाउंटिंग्स, आई एम लॉ फैकल्टी। ओह, यस कहाँ पे? सर मुरादाबाद, इट्स अ केजी के पीजी कॉलेज। ओके ओके more than 4 years now, teaching since ओके। 19। yes sir। मैं आई वाज लाइक आई, मैं चाह रहा था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, मेरा बहुत मन था, बिकॉज आई टीच माय जूनियर्स एंड ऑल, बिकॉज आई थिंक बेस्ट रिवीजन वही होता है जब आप किसी को पढ़ाते हो। ठीक है, academics is the wholesome thing in law, sir। you हाँ can't compare academics to litigation or judiciary, you can't। हाँ, academics is supreme लाइक and the best। अपडेट अगर रहना है ना तो एकेडमिक्स इज वेरी, या either take 1 or 2 lectures a day with the practice। मेरा मेरा अभी थोड़ा है लाइक आई वाज, मेरा मैंने नेट अभी दिया था, बिकॉज अब मैं जस्ट अभी एलएलएम मेरा कंप्लीट हुआ, मेरे को 10 मार्क्स से मेरा छूटा इस बार का नेट, बट द जून जुलाई विल ट्राई इट अगेन, तो आई विल सी कि नेट अगर हो जाए देन आई विल बी इनटू एकेडमिक्स। सर एलएलएम में स्ट्रीम क्या रहा आपका? लाइक स्पेशलाइजेशन यस सर। मेरा क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज। क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज, ओके या सर। हाँ, एलएलएम के हम लोग के जो हम उधर जो कॉलेज थे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, उसमें Yes, दो sir। ही स्ट्रीम्स था, इट वाज अ डिफेंस बेस्ड कॉलेज। वो एक्चुअली अभी इतना हाईलाइटेड नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड कॉलेज, यू कैन गो एंड सी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो पहले 2009 में वो
गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता था। फिर 2020 में पार्लियामेंट में बिल पास करके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिए थे। एमएचए के अंडर आ गया था वो। तो उसमें मैरिटाइम लॉ था और आपका क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ था। तो मैरिटाइम लॉ इतना अभी बूमिंग में है नहीं एज कंपेयर टू, तो आई प्रेफर टू गो इनटू क्रिमिनल एंड सर सिक्योरिटी इन लॉ। वेस्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में सर एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रीम में सर सिक्योरिटी लॉज पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम लोग के इसीलिए मैम ना, जैसे कि यूएपीए टाडा पोटा ये सब चीज को पढ़ाया गया था विद रेफरेंस टू आपका आर्टिकल सब कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की क्यों ब्रीच हुआ, आर्बिट्ररी पावर ज्यादा मिल गया था। जैसे कि हम लोग को फॉरेंसिक साइंस भी पढ़ाया गया ना, तो फॉरेंसिक साइंस में जैसे आपका जो ड्रग टेस्ट होता है, ठीक है, यस सर। और जो आपका इंट्रोगेशन होता है, ठीक है, उसमें आर्टिकल 21 का क्या रोल है, ठीक है, कि और आपका ये सेल्फ अपना खुद से क्या था वो सेक्शन आर्टिकल 21 आई गेस 21 क्लॉज 3 आई गेस, कि अपने खिलाफ खुद नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो द होल थिंग कम्स कॉन्स्टी से हर चीज को कनेक्ट करके ही पढ़ाते हैं। उधर एलएलएम में भी फॉरेंसिक से मेरा पढ़ाई हुआ था, तो फॉरेंसिक साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन आया ही था। फिर टाडा पोटा में तो आया ही था, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के टाइम पे एक डिफरेंशिएट है कि प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। उसी बेस पे अगर कोई लॉज बन रहा है जिसमें सीआरपीसी भी नीचे जा रहा है और वो लोग ऊपर आ रहे हैं, यूएपीए वगैरह ये सब ऊपर आ रहा है, और जो मेन लॉज है उसको भी ओवररूल कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उससे अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है, फिर रीट वगैरह का चीज आ जाता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरी लॉ इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये, इसीलिए मैंने ऑनर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन लिया था। लकी एनएफ की क्रिमिनल के साथ साथ सर आपने ये सिक्योरिटी लॉज भी पढ़ लिया। वेस्ट यूपी में क्रिमिनल बिल्कुल अलग स्ट्रीम हो गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये लगा दिया नहीं, सिक्योरिटी। हम लोग को क्रिमिनली पढ़ाया गया था, ऐसा नहीं। हम लोग को मतलब मान लीजिए कि सीआरपीसी जो था हम लोग का, वो कंपैरेटिव सीआरपीसी था, अलग अलग कंट्रीज का जो लॉ सीआरपीसी और इंडिया का सीआर, हाँ, तो उसको कंपैरिजन था, बट उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल टच भी अलग से सब्जेक्ट था कि उसको बेनिफिशियरी भी है सर आप काफी, ये क्या। तो बहुत अच्छा है सर, काफी बेनिफिशियरी रहे हैं आप सर। एलएलएम में सर आपको दोनों स्ट्रीम्स मिल गई। हाँ, मैं एक्चुअली मैं को लग रहा था कि नया इंस्टीट्यूशन है, कैसा क्या होगा, बट दैट द थिंग इज कि वो, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। एंड हम लोग का ऐसा होता था मैम कि जितना भी सीवीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वगैरह रहते थे, तो हर महीना एक वर्कशॉप के लिए आते थे कॉलेज हम लोग के एलएलएम के टाइम पे। तो वी हैड, हाँ, तो वो एक इंटरेक्शन सेशन हो जाता था उन लोग से भी, तो वो लोग भी बढ़िया से गाइड कर देते थे हम लोग को कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं, कैसा। तो वो लोग भी बहुत लाइक दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड, लाइक हम लोग का जो पैटर्न था, जो सिलेबस था, डिजाइन था, तो वो बोले कि पहले तो एलएलएम आपको पता है कि ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन और ये बाकी जो कॉमन चीज रहता है जो हर कॉलेज फॉलो करता है वो रहता है, बट साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजेस भी ऐड ऑन किया गया था कि एनालाइज करके पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि बिकॉज हम लोग को पहले ही दिन से बोल दिया गया था कि एलएलएम इज अबाउट रिसर्च, ऑल अबाउट रिसर्च, इट इज वेरी मच इनटू रिसर्च। सो इसमें कुछ डाउट ही नहीं है कि अगर आप जाएंगी मार्क्स लेके आएंगी, क्या वो मत देखो, क्या समझ रहे हो, कितना इनटेक कर पा रहे हो, दैट इज एनफ। क्योंकि Agreed. जब हम लोग डिसर्टेशन भी कर रहे थे, इट वाज लिटिल हेक्टिक बट इट वाज इंटरेस्टिंग, It was ठीक fun. है, फन। Sir. बाकी सब स्टूडेंट्स है कि बाकी सब भी लॉयर्स या ऐसा। Sir, I have a doubt regarding हाँ, the session. So, what is the difference between doctrine of basic structure and the preamble? सी प्रियम्बल इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे होता है ना कि आप, एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, किताब के अंदर मोटा मोटी मतलब मेन क्या चीज आपको मिल जाएगा वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रिन ये है कि जो प्रोटेक्ट भी करता है जो प्रियम्बल का ट्रू स्पिरिट को, बिकॉज प्रियम्बल के ट्रू स्पिरिट से अदर लॉज बना है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि जो ट्रू स्पिरिट लिखा है प्रियम्बल में, जो रिजेंबल हुआ है तुम्हारा आर्टिकल्स वगैरह में, उसको उसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी ना होते हुए अगर कोई लॉ आ रहा है, देन दैट विल बी वेलकम्ड।
बट अगर कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है देन वो लॉ सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। So, for example, as there is words in our preamble like socialist, secular, so it would हाँ, also come in the basic structure doctrine. see, basic structure doctrine doesn't contain any words. Okay, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कोई वर्ड कनेक्ट नहीं करता कि ये होगा। वो इन मतलब कि समरी में यही बोल रहा है कि जो जो अगर मान लो कि इंडिया सेकुलर, ओके, तो मेरे को बताओ कि सेकुलर का मीनिंग क्या है जो इंसर्ट हुआ है। Sir, it would not follow any particular religion. नहीं, मैंने बोला कि सेकुलर लिटरल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म क्या है। सर सेक्युलर का तो मीनिंग यही होता है ना कि इट वुड नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर, मतलब हर रिलीजन को इक्वलिटी से ट्रीट किया जाएगा। नहीं, सेकुलर का लिटरल मीनिंग ये नहीं है। तुम जो डेफिनेशन बोल रही हो ना वो गांधीयन वे ऑफ सेकुलरिज्म है। अगर सेकुलरिज्म का मीनिंग तुम नेट पे भी सर्च करोगे ना तो उसमें पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, कोई भी रिलीजन नहीं माना जाएगा। जैसे सर फ्रीडम फ्रांस, टू रिलीजन, क्या सर क्या freedom to practice any religion in a particular country is treated as secularism. हाँ, बट मैम एक्चुअली ना अगर आप मैं रिसर्च किया था इस पे, तो मेन जो लिटरल, मैं लिटरल सेंस बोल रहा हूँ, डिक्शनरी मीनिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, एज नॉट इन द लॉ एस्पेक्ट। जो Yes, sir. इंडिया में जब ऐड भी किया गया था उसको अलग से डिफाइन किया गया था। जो सेकुलरिज्म का जो मेन मतलब ये है कि कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा कोई टाइप का रिलीजन, मतलब कि रिलीजन प्रैक्टिस ही नहीं होगा। जैसे अब एग्जांपल फ्रांस लीजिए, फ्रांस में कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं होता, ठीक है। Neutrality. हाँ, ठीक है। तो इंडिया में जब लाया गया था ना 42nd अमेंडमेंट में सेकुलरिज्म, इंडिया में इसलिए लाया गया था, रीजन ये था कि इंडिया में आपका डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, रिलीजन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर उसमें हम लोग कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को उठा के ज्यादा दे देंगे तो वो केओस हो जाएगा कंट्री में। तो इसलिए सेकुलरिज्म को हम लोग गांधीयन वे ऑफ सेकुलरिज्म बोलते हैं, नेहरू वे ऑफ सेकुलरिज्म इसलिए उसको टर्म दिया गया था, क्योंकि उसमें ये बोला गया था एज बहुत सारे रिलीजन है तो हम बोलेंगे नहीं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन हो, एवरीबडी इज फ्री टू प्रीच एंड प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। Yes, sir. Agreed. समझे? तो वही चीज, तो ये जो जैसे सेकुलरिज्म का मैंने वर्ड आपको बताया खुशी जी, ये एक मीनिंग है, ये स्पिरिट दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लॉज आर्टिकल्स बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 बोला गया है कि आप अगर अपना जाति का नाम ऐसे पब्लिश करके घूम नहीं सकते। आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, रिपब्लिक सोवरेनिटी। ये जो चीज है ना, ये एक एक वर्ड ना एक एक स्पिरिट, एक सेंस देता है, ठीक है। और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक आर्टिकल में जब पढ़ेंगे ना, मेन अगर आप सारांश निकालेंगे उसका ना, उसका सारांश ये है कि जस्ट एंड फेयर सोसाइटी एम कर रहा है, और उस Yes, जस्ट एंड फेयर सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि जो आपने बोला ना 24 अप्रैल 1973 से जो भी लॉज अमेंड होगा, ठीक है, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से फिल्टर आउट होगा। उसी से देखा जाएगा कि कौन सा चीज आर्बिट्ररी है, कौन सा लॉ आर्बिट्ररी है, कौन सा लॉ आर्बिट्ररी नहीं है। उस हिसाब से आपको फिर उसको कंसिडर करना चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके सर, थैंक यू। किसी को और कुछ डाउट या कुछ भी? नहीं सर, वन लास्ट लाइन टू से, मतलब सर वी कैन से, जैसे खुशी ने भी क्वेश्चन रेज किया था कि प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस, तो वी कैन से कि जो प्रियम्बल होता है सर उसमें तो ये बताया गया है कि जो आपका लेजिस्लेचर है वो क्या कौन कौन से जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना रहेगा, तो वो प्रियम्बल में एक्सप्रेस कर दिया है। और सर अगर उसके बाद में प्रियम्बल के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ बन रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हम अप्लाई करेंगे, फिर वो टेस्ट करेंगे कि क्या वो ठीक है, अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। और ये चीज वही जो फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब प्रियम्बल भी ड्राफ्ट हुआ था, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, मेन इंटेंशन क्या था जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ठीक है, वो प्रियम्बल में एक्सप्रेस हुआ है। वो एक्सप्रेस हुआ है प्रियम्बल में। पहले तो आई गेस प्रियम्बल का नाम कुछ अलग था, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में मैंने बुलाया, मतलब कि इंट्रोड्यूस किया था प्रियम्बल को, तब नाम कुछ अलग था, मुझको रिमेम्बर नहीं हो रहा। फिर उसके बाद उसको नाम प्रियम्बल दिया गया था।
Sorry. सर इसको तो कुछ होगा, ये तो नहीं पता नाम तो सर हाँ। इसका। कुछ था अलग से कुछ नाम था, अगर आप सर्च कर सकते हो हमको लगता है तुरंत मिल जाएगा। आई थिंक सर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को काफी अच्छे से पढ़ा सुना है, अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है हमको भी हाँ करना पड़ेगा अब। नहीं, थैंक यू फॉर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट मैम इसलिए मैं पढ़ा हूँ ना It's called objective resolution. हाँ ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, राइट, थैंक ऑब्जेक्ट यू। रेजोल्यूशन। मैम इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में पढ़ा तो नहीं हूँ, एक आपका एक पॉडकास्ट था, उससे मेरे को इंटरेस्ट हुआ तो मैं उसके बाद पूरा पढ़ने लगा। देख क्योंकि जब मैंने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले मैं स्टार्ट किया था बैटल ऑफ प्लासी से, ईस्ट इंडियन कंपनी जब आया था, या ओके तो उधर से पढ़ते 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 फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बना, क्या बना, ठीक है, तो मतलब लक्ष्मीकांत ही मान लीजिए आप, So, ठीक है। which So, book do you so suggest for this constitutional reading? I want to मैम मैं तो डीके बासु तो अच्छा है, मैं तो मैम एक डीके त्रिपाठी का बुक है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फॉलो करता हूँ। और आपका मतलब ऐसे जनरल नॉलेज और पढ़ने के लिए, So, एंड for first year student, जैन पांडे। जैन पांडे अच्छा है यार। जैन अगर आपको ऐसे चाहिए कि क्वेश्चन आंसर टाइम, जैसे कि मेन स्टूडेंट एकेडमिक्स में ये होता है जो मैं फेस किया था मेरे टाइम में, कि तुमको ही पता आर्टिकल 14 क्या है, मेरे को ही पता आर्टिकल 14 क्या है, ठीक है, बट जब तुम लिखते हो ना आंसर, तब वो एक स्ट्रक्चर से मिल जाए। एक जन को तुमसे ज्यादा मिलेगा, एक जन को कम मिलेगा। वो इसीलिए होता है कि तुम उसमें क्या क्या ऐड ऑन कर रहे हो, हर एक आर्टिकल यही एक खूबसूरत है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, हर एक आर्टिकल का ना अपना अपना एक तरीका एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो उस आर्टिकल को तुम कैसे पकड़ के एक्सप्लेन कर रहे हो, कितना केस लॉ डाल रहे हो, कितना क्या डाल रहे हो, तो वो तुम्हारा डिपेंड करता है। अगर तुमको बुक तो पढ़ लोगे, अगर तुमको चाहिए कि आंसर राइटिंग कैसे हो, तो एक बुक है रेगा सूर्य राव करके, ठीक है, उसमें ना यू हैव लाइक 5 मार्क्स क्वेश्चन, अगर तुम पूछा गया कि आर्टिकल 14 के बारे में लिखो ब्रीफ, एंड लाइक 5 मार्क्स का आंसर है, उसमें कितना क्या डालना है, कैसे स्ट्रक्चर होता है आंसर्स का, 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, तो वो एक आइडिया दे देता है ओवरऑल की स्ट्रक्चर क्या रहता है आंसर, यू कैन फॉलो दैट। बट फॉर नॉलेज जैन पांडे, डीके बासु, if you are more into politics and all, you can read M. Lakshmikant. sir, is this books helpful for judiciary if I want to face in future? For what? Please pardon. Sir, I want to face judiciary in future. So, is this book helpful? Which one? Rega Surya Rao or which Jain Pandey? Which one? Yes, sir, for constitution. Yeah, it's helpful. And I don't know about other states, but from the state I belong, we get very less questions. Like constitution का बहुत कम questions रहता है उसमें। Sir, from which state you are? I am from Odisha. Okay. तो हम लोग के यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम क्वेश्चंस रहता है, So बेसिकली ज्यादा even क्वेश्चन। या यस मैम। yeah, sorry to interrupt, sir. Sir, even Sirvai is a good book. सर मैम HM दैट इज आल्सो एचएम सरवई, उसके ऊपर हाँ तो है ही एचएम Yeah. सरवई तो। तो मतलब कि मेरे स्टेट में बेसिकली फोकस कर जुडिशरी में आपका प्रोसीजरल लॉज और सब्सटेंशियल लॉज, ये सब ज्यादा प्रोसीजरल लॉ से ही पूछते हैं, सीआरपीसी एविडेंस। मार्क्स का वेटेज है मेंस में सर कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्री में हाँ भी 35 to 50 का है वेटेज सर। मेरे को तो मैम सबसे डिफिकल्ट बिहार का लगता है, क्योंकि उसमें यूपीएससी बना दिया है, उसमें पूरा आपका या ओके ओके। या एनीबॉडी। वेलकम मैम, वेलकम। आई गेस they have no doubts. Sir, kindly share your LinkedIn profile URL if possible here, sir, in the chat box. Would like to follow on LinkedIn. If I'm possible. sharing my name,
I'm not able because the tab में मेरे connected नहीं है, but I'm saying the full name. Legal guardian can mail us your LinkedIn user. Yeah, Okay. they have. Yeah. Sure. Okay, then. Thank you for the session. And I would like मेरा ये पहला था as a webinar, ऐसे मतलब ऐसे lecture या जो भी है ये, बट मैं अपने कॉलेज में खुद गया हूँ, दिया मैं। आई वाज वेरी अफ्रेड कि इंटरेक्टिव हुआ कि नहीं ऑनलाइन में, बट इट वाज रियली वेरी इंटरेक्टिव। थैंक यू लाइक लीगल गार्डियन टू प्रोवाइड मी दिस प्लेटफॉर्म, okay, and making my Sunday real, like I feel very good and calm right now, like talking about constitution and all. It's really an informative session. Congratulations. You just did a very well job. Really appreciable. It was. Sir, it's not a question, it's just a add-on. I think the earlier name of preamble was objectives resolution. Yeah. That Khushi also said the early name preamble was object resolution. It was introduced by Jawaharlal Nehru only. Yes, sir. Anything else? Yeah, definitely. Okay, sir. Then bye bye. Take care. Have a good Sunday.